السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ آج کے اخبارات میں تو ظاہر سرخیاں سرخیاں موجود ہیں۔ زرداری اور بلاول کے حوالے سے ظاہر کل گڑھی خدا بخش میں جو مرکزی تقریب تھی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی برسی کے موقع پر، اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ سارے اخبارات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کل عمران خان صاحب نے حیدرآباد یونیورسٹی کی تقریب اجرا سے خطاب کیا جو اسلام آباد میں منعقد تھی، خالد مقبول صدیقی کی، اور جو ہمارے لاء منسٹر ہیں فروغ نسیم ان کی بڑی تعریف ہوئی۔ ایم کیو ایم کی بڑی تعریف اس طرح ہوئی کہ بہت وزیر اعظم صاحب کے مطابق جو وزراء ہیں بڑے نفیس ہیں اور بڑا انہوں نے سلجھاؤ کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو کابینہ میں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو بڑی ایک خوش آئند بات یہ لگی کہ بڑے عرصے سے یہ بات محسوس کی جاتی تھی ناظرین کہ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف مل کر ایک ایسی قوت بن سکتے ہیں کہ جو چیلنج کر سکیں سٹیٹس کو، یعنی زرداری صاحب کی حکومت کے معاملات جب تھے یا نواز شریف صاحب کے، کہ ان کو کوئی ٹف ٹائم دے پائیں۔ تو لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا لہجہ خاصا تلخ بھی رہا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، خیر اس کا کل انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ خبریں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ہر حال میں حکومت کا خاتمہ کر کے رہیں گے زرداری بلاول، چاہے جیل میں ہوں یا باہر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، حکومت کے خاتمے تک واپس نہیں آئیں گے۔ حکومت برقرار رہی تو پاکستان 100 سال پیچھے چلا جائے گا، سابق صدر۔ 18ویں ترمیم کو چھیڑا تو ایک لات مار کر حکومت گرا دوں گا، عوام کی چیخیں نکلوانے والے وزیر ہیں یا معاشی دہشت گرد؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب۔ تحریک انصاف ایم کیو ایم کے نظریات ایک جیسے ہیں، اگلا الیکشن مل کر لڑیں گے۔ عمران خان، نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ بلوچستان اسلام آباد سے شروع کرنے کا اعلان۔ متحدہ سے اختلاف عسکریت پسندی پر تھا، 90% پاکستانیوں کو انگریزی نہیں آتی۔ اسمبلی میں بلاول کی انگلش میں تقریر لوگوں کی توہین ہے، عظیم ملک بننے کا خواب تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہ تو ایکسپریس کی خبریں تھیں، یعنی سرخی شہ سرخی۔ ایک اور اہم خبر، اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس، نیب ملزموں کو ہتھکڑیاں لگانا خلاف قانون و شریعت قرار۔ جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کی میڈیا کے سامنے حد کے عزت اسلام اور تکریم انسانیت کی اساسی اقدار کے منافی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے جو کل اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، موسمی تبدیلیاں قرار۔ اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس۔ مسعود اظہر پر پابندی کی امریکی کوشش، چین کا کھلا انتباہ۔ روزنامہ جنگ، عمران کے لیے وقت ختم، اسلام آباد جا کر حکومت ختم کر کے دم لیں گے زرداری۔ ہماری باری انصاف کی دیوی سو کیوں جاتی ہے؟ 18ویں ترمیم کو چھیڑا تو انہیں لات مار کر گرا دیں گے بلاول۔ کل بڑی کوشش کی بلاول نے کہ اپنے نانا کے طریقے سے ذرا وہ خطاب کرے، جوش جذبات ہم نے دیکھے کہ بڑے تھے۔ میری کابینہ میں متحدہ ارکان سب سے زیادہ نفیس، ایم کیو ایم تحریک انصاف کے نظریات ایک، لگتا ہے اگلا الیکشن مل کر لڑیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا جو میں نے ابھی آپ سے بات کی۔ بہتر پاک امریکہ تعلقات کے لیے اسلام آباد، افغان پالیسی بدلے، زلمے خلیلزاد پاکستان کے دورے پر، اور انہوں نے یہ بات کی کل۔ دینی قوتوں کی آواز ہوں، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ شیخ رشید صاحب ریلوے پر آ جائیں تو بہتر ہے، اور ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیونکہ جمعہ ہے تو پشاور سے عظمت گل، ہمارے جو نمائندے ہیں پشاور کے، وہ موجود ہیں، اور عظمت سے جو ہم بات کریں گے وہ بس ریپڈ ٹرانزٹ کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، بہت بات ہو رہی ہے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات بہت عرصے سے کی جا رہی تھی، لیکن ذرا دبے الفاظ میں۔ عظمت ان چند رپورٹرز میں شامل ہیں کہ جنہوں نے شروع میں ہی جب منصوبہ شروع ہو رہا تھا تو اس وقت سے ہی اس پہ رپورٹنگ شروع کی اور اس میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی بھی کی،
مختلف لیولز پہ وہ بتاتے بھی رہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی. بہرحال عظمت سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عظمت. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ خیریت بالکل اللہ کرا. عظمت آپ نے تو بہت عرصے سے یہ بات ہمیں سب کو بتائی ہوئی تھی کہ یہ بس ریپڈ ٹرانزٹ جو ہے اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا نہیں, تو اب یہ آفیشیل رپورٹ تو آئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا چل رہا ہے؟ جی بالکل, اس سے پہلے بھی ہم وقتاً آپ نے ناظرین کو یہ شیئر کرتے رہے اور اس کی نشاندہی کرتے رہے کہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے اس میں اربوں روپے کرپشن کی گئی ہے, جبکہ ناقص انتظامات کی وجہ سے بی آر ٹی انہوں نے کہا تھا کہ یہ 6 مہینوں میں ہم کمپلیٹ کریں گے, لیکن تقریباً 2 سال اب مکمل ہو رہے ہیں اور اب بھی اس کے مکمل ہونے کا تاثر نہیں, جو آثار ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اب اس کی انسپیکشن ٹیم نے باقاعدہ طور پر اپنی رپورٹ بھی جاری کی ہے جس میں تمام تر جتنے بھی ناقص انتظامات ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے, جبکہ صوبائی حکومت نے صوبائی جو انسپیکشن ٹیم بنائی تھی اس کے بنا پر 2 اعلیٰ افسران کو بھی اپنے عہدوں سے ہٹا دیا, جس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ کامران خان اور ڈائریکٹر پی ڈی اے اسرار الحق بھی شامل ہے. اسرار الحق نے کل اس حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا, جبکہ جو وزیر بلدیات ہے خیبر پختونخوا کے شاہرام خان, انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اور اس کا کہنا تھا کہ اسرار الحق ڈی جی پی ڈی اے کو ہٹانے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور وزیر اعلیٰ نے یہ ایک طرفہ فیصلہ کیا ہے. تاہم یہ تو ایک دوسرے پر وہ الزامات لگاتے ہیں, لیکن اصل میں بی آر ٹی منصوبہ 59 ارب سے شروع کیا گیا تھا اور یہ تقریباً 28 کلومیٹر پر محیط تھا. پھر یہ بڑھتے بڑھتے یہ لاگت یہ 39 ارب سے شروع کیا گیا تھا, پھر یہ 59 ارب پہ گیا, 59 ارب کے بعد اب یہ 75 ارب پہ. اب سننے میں آیا ہے تقریباً 11 اسٹیشن ایسے ہیں جو کہ اس میں بی آر ٹی بس کا گزرنا بہت مشکل ہے, اور اب 11 اسٹیشن کو دوبارہ ڈیمالش کر کے اس کی لاگت تقریباً 11 ارب مزید بڑھ گئے, تو یہ تقریباً 86 سے لے کر 91 ارب تک پہنچ چکا ہے اور بی آر ٹی کی تکمیل نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہاں پر ایک طرف اگر حکومت عوام کو تکلیف ہے تو دوسری جانب تاجر برادری بھی اس کے خلاف وقتاً اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اور تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ہمیں اس تقریباً 18 مہینے میں تقریباً 66 ارب سے زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے. جی ٹھیک ہے عظمت, یہ بتائیے گا, ایک تو یہ بتائیے کہ جو گزشتہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں خیبر پختونخوا خٹک صاحب, ہماری اطلاعات کے مطابق تو ان کے پاس محکمہ جو ہے ورکس اینڈ ڈیولپمنٹ کا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. دوسری جانب یہ بھی بتائیے گا کہ محمود خان صاحب نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ ایک انکوائری رپورٹ اس حوالے سے منگوائی جائے. دوسری ایک اور بات جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کے پی کی جو اس وقت حکومت ہے, وزراء ہیں, ان کے علاوہ ایم پیز ہیں اور خود وزیر اعلیٰ ہیں, آپس میں یہ سب ایک پیج پر ہیں یا لابیز وہاں پر ابھی بھی کام کر رہے ہیں؟ فضا بالکل آپ کی بات اس حوالے سے میں درست سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مکمل لابی اپنی کام کر رہی ہے, خاص کر محمود خان کے خلاف, جبکہ یہاں پر جو اہم محکمہ ہے اطلاعات اس میں 2, ایک شوکت یوسفزئی اور دوسرا اجمل وزیر جو کہ مشیر ہے وزیر اعلیٰ کا, تو محکمہ اطلاعات میں یہ کشمکش جاری ہے, جبکہ دوسری جانب محمود خان کے خلاف بھی کئی وزراء کئی دفعہ محاذ بنا چکے ہیں, اور اب تو بی آر ٹی میں بھی کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل وزیر بلدیات شاہرام خان نے اس پر کل کے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور وہ خبر بھی ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھی. تو یہاں پر وقتاً فوقتاً تقریباً 4-5 وزراء ایسے ہیں کہ وہ اب اپنا لابی بنا رہے ہیں تاکہ جو محمود خان ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے. لیکن اس حوالے سے وزیر اعظم نے کھل کے اس وزراء کو کہا ہے کہ جب تک میری محمود خان ہے تو مجھے اس پر مکمل اعتماد ہے, لیکن یہاں پر کچھ بیوروکریٹس بھی ہے جو کہ اس وزراء کے لابی میں
शामिल है और उसको तकरीबन एक दो महीने पहले इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स को हटाया गया था, जिस पर फिर दरमियान में फिर उसमें बातचीत की गई और कई अहम ब्यूरोक्रेट्स से अहम ओहदे लिए गए, लेकिन ताहम बाद में फिर कई ब्यूरोक्रेट्स को दोबारा पर वहाँ पर तैनात किया गया। यहाँ पर लाबी मुसलसल जारी है, तकरीबन एक साल ये हुकूमत की मुकम्मल हो रही है, लेकिन यहाँ पर इख्तिलाफात के जो आसार है वो रोज का रोज बढ़ती जा रही है और एक दूसरे पर तनकीद किया जा रही है। जबकि दूसरी जानिब परवेज खटक की मैं बात करता चलूँ तो उस बिल्कुल उसके साथ ये महकमे उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने चुन के ये जो BRT की जो रिपोर्ट थी ये वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के कहने पर यहाँ पर इंस्पेक्शन टीम बनाई और उसके ये रिपोर्ट सामने आया है। तो रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर पिछली हुकूमत के खिलाफ है। इसमें जितने भी बंदे शामिल है उसके खिलाफ ये रिपोर्ट आज शाया हुई है और इस हवाले से नेब ने भी इंक्वायरी शुरू की थी, लेकिन नेब इससे पहले हाई कोर्ट में गया था, फिर हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया था कि BRT में जो करप्शन हुई है उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की जाए। तो सूबाई हुकूमत फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला वहाँ पर चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो नेब है उसको इंक्वायरी करने से रोक दिया है। अगर नेब इसमें इंक्वायरी करती तो बहुत चीजें सामने आ जाती। एक जराये से हमें यह भी मालूम हुआ है कि पिछली हुकूमत के जो आला ओहदेदार है उस पर तकरीबन इस BRT में 6 अरब से ज्यादा रुपए लेने का इल्जाम भी इसमें शामिल है। अच्छा, ये बताइएगा, इस रिपोर्ट में निशानदेही हुई है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको 25% ज़्यादा बढ़ाकर अदायगी की गई कि वो 6 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। तो जब प्रोजेक्ट वैसे ही 1.5 साल तक अभी चल रहा है तो वो 25% वापस किया उसने, क्या हुआ उसके बारे में क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो इसकी निशानदेही मुकम्मल की गई है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं किए गए, क्योंकि मैं फिजा इससे पहले भी मैं ये बता चुका हूँ इसमें अरबों रुपए करप्शन की गई है। इसमें एक अहम बात है जिसकी तरफ अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी और ये मैं मुसलसल अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करता चलता हूँ और जब किसी जगह पे बैठता हूँ तो वो निशानदेही मैं करता हूँ। इसमें असल निशानदेही यही है कि तकरीबन 3 लाख रुपए जो कि सिर्फ चक्राव पानी के चक्राव पे एक ठेकेदार को दिया गया है और जिस दिन से BRT शुरू हुई है आज दिन तक 3 लाख रुपए रोजाना उसको पेमेंट दी जा रही है। तो तकरीबन 18-19 महीने गुजर गए हैं। इसको तीन में ज़रब दे दे तो ये कहाँ तक ये रकम जाती है और जो गर्दो गुबार है वो बदस्तूर वहाँ पर मौजूद होती है और पानी का जो टकराव है वो नजर नहीं आ रहा है। तो पानी के टकराव के लिए भी 3 लाख रोजाना। वाह वाह। वापस आते हैं अजमत, आप हमारे साथ रहिएगा। अपडेट का टाइम है, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अजमत गुल हमारे साथ पेशावर से मौजूद है। उनसे अगला सवाल हम जो करेंगे वो ये है, अजमत एक टीवी प्रोग्राम के मुताबिक कल एक डिस्कशन में ऐलान मतलब इंकशाफ किया गया, BRT मंसूबा काबीना की मंजूरी के बगैर शुरू हुआ। साबिक सूबाई वज़ीर KP के और इनायतुल्लाह खान जमात इस्लामी के जो यानी मेंबर थे उनकी जानिब से इंकशाफ सामने आया। दूसरी जानिब ये रिपोर्ट में भी निशानदेही हुई है कि इसका तो PC1 ही नहीं बना था BRT का। इतना बड़ा मंसूबा बगैर किसी प्लानिंग, तैयारी, अप्रूवल कैसे शुरू हो गया? जी फिजा, बिल्कुल मैं इसमें एक अहम बात ये ऐड करना चाहता हूँ जो कि कंफर्म रिपोर्ट है और इसकी हमने फिर वहाँ से पूछ भी लिया था। इसकी जल्दबाजी में शुरू करने का सबसे अहम वजह यही थी कि यहाँ पर सोलर एनर्जी के पुल लगाए गए थे जिस पर तकरीबन 50,000 रुपये कुल खर्चा आता है, लेकिन परवेज खटक साहब ने जो कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे उन्होंने अपने एक ठेकेदार को यह ठेका दिया था और तकरीबन उसके दस्तावेज़ात मेरे पास थे। ये उसको 1,50,000 से लेकर 1,10,000 तक ये मंसूबा फी पुल उनको दिया गया था। तो उसके खिलाफ नेब इंक्वायरी शुरू करने वाले थे कि परवेज खटक ने यहाँ पर BRT शुरू की और तमाम जहाँ पर ये पुल लगे हुए थे तो वहाँ से BRT
का काम रातों रात शुरू किया गया था। इसमें एक अहम इंकशाफ ये भी है क्योंकि इस हवाले से नेब इंक्वायरी शुरू करने वाले थे, लेकिन वो पुल की जड़ें खत्म कर दी गए। तो इंक्वायरी किस चीज पर अब की जाएगी, ताकि ये जो पुल गए थे वो 50,000 के थे या 1,20,000 या 1,30,000 में लगाए गए हैं। तो इसी वजह से एक नाकिस मनसूबाबंदी और डिजाइन प्रोजेक्ट में गफलत की गई थी। आवाम का पैसा इस BRT में ज़ाया किया गया है, ये रिपोर्ट में भी कहा गया है, क्योंकि फेसिबिलिटी निकासी आप जो टेक्निकल रिपोर्ट और हाईवे रिपोर्ट तकरीबन तमाम जितनी भी रिपोर्टें हैं उनमें हामिया की गई है और फेसिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर नहीं बनाई गई थी और जल्दबाजी में यह मंसूबा शुरू किया गया था। और इमरान खान को भी इसमें इत्मीनान में लिया गया था और उसको ये कहा गया था कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा होगा और आवाम को ये सहूलती होगी। तो आवाम को सहूलती की बजाय अब पेशावर में जहमत उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत, आपने तफसील से बताया इस मंसूबे की नकाइस के बारे में, इस रिपोर्ट की जुजियात के बारे में। इसमें एक इजाफा ये भी कर दें नाजरीन, जो बात सामने आ रही है वो ये भी है कि इस मंसूबे को जो कह रहे हैं कि अब इसकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे जो KP के वज़ीर इत्तलात हैं वो इसरार कर रहे हैं कि नहीं, ये अभी तक 28 अरब ही है, बाकी जो पैसे हैं वो दीगर जो इस मंसूबे से मुंसलिक शाहराहें होंगी, बाकी और सहूलियात होंगी, वो सारे पैसे वहाँ लगेंगे। ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। दूसरी जानिब इसमें एक और बात सामने जो आई वो ये थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैंने ये बात पहले भी की है, उसके सर पर ये सारी मलबा गिराने की बात की जा रही थी, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से वजाहत सामने आई है कि जनाब उनका मंसूबों की डिज़ाइनिंग से, एग्जीक्यूशन से ताल्लुक़ नहीं हुआ करता, उनसे पैसा मांगा जाता है, वो पैसा देते, और इस मंसूबे में भी उन्होंने यही काम किया है। तो ये तो थी BRT की कहानी पेशावर से। अब हम चलते हैं मुल्तान, और हमारे साथ जुनेद मलिक वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनसे रब्ता करें। मुल्तान के हवाले से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर जो मेट्रो चल रही है, उस मेट्रो के जो ट्रैक्स हैं वहाँ से मलबा गिर रहा है। जुनेद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिजा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हुकूमत ये हो या कोई गुज़िश्ता, काम सबके इसी तरह के आधे पौने नाकिस। ये इस बारे में बताइएगा कि वाकई क्या ये बात सच्ची है कि जो मेट्रो है मुल्तान की, उसमें पहले तो हमने वो पानी वाले मसले देखे थे बारिशों के बाद, अब कहा जा रहा है कि मलबा गिर रहा है, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये जो है फिजा 2-3 दिन पहले का वाकया है। हाँ, कि जो है वो ऊपर मेट्रो के जो पिलर बनाए गए थे उसके ऊपर से जो है पत्थर गिर रहे हैं। उससे पहले भी जो है मुख्तलिफ मकामात पे गिरे हैं। मुझे याद है हमारी आपसे इस बारे में बात भी हुई थी। जी जी बिल्कुल। ये जो ज्यादा बड़ा वाकया था वो 6-8-7वां दिन है। हाँ। कमिश्नर की जानिब से जो है उसकी इंक्वायरी भी करवाई जा रही है, मगर जो DC मुल्तान है मुदस्सिर रियाज मलिक, वो उसमें आड़े आ रहे हैं। अभी तक किसी किस्म की कोई जो है उस पर इंक्वायरी नहीं हो सकी। अच्छा, उनका इंटरेस्ट, हिदायत की थी DC उनका क्या के इंटरेस्ट खिलाफ। है? उनका क्या इंटरेस्ट है इसको डिले करने में? जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जारी बात है, उनको उनके खिलाफ कहा था कि मुकदमा दर्ज किए जाएं। अच्छा। क्योंकि बड़ा नुकसान भी हुआ था, और ये अगर इसी तरीके से नाकिस मटेरियल के ऊपर ये सिलसिला चलता रहा तो जारी बात है वो जो 28,000 या 88 अरब रुपए की कहते थे कि मेट्रो पे लगाए हैं और तमाम चीजें हैं, तो वो सारी करप्शन की नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मेट्रो मुल्तान इतनी जो है वो नहीं उसमें आ सकी, क्योंकि मुल्तान मेट्रो की जो बसें हैं वो कुछ डेरा गाजी खान भेज दी, कोई तो उनसे भेज दी, कोई इधर उधर भेज दी। ठीक है। तो ये भी बड़ा ज्यादा देख रहे हैं कि जिस तरीके से कह रहे थे कि आवाम बड़ी इस पे सफर करेगी, और जदीद सफरी सहूलियात बिल्कुल जदीद हैं सही, मगर जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो पुराने दौर का किया गया, इसीलिए बार बार गिर रहा है और नुकसान हो रहा है। उफ, मैं क्या पता नहीं जुनेद, मुझे समझ नहीं आता कौन लोग हैं ये हमारे सरों पे मुसल्लत। अच्छा चले अब ज़रा सियासी गुफ्तगू करते हैं। हालांकि सियासी गुफ्तगू पर अक्सर जगह पे पाबंदी होती है, लेकिन हम बात करते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब एक दफ़ा फिर आमने सामने नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के पीछे ऐसा कौन है जो इतनी मजबूती से वो इतने बड़े बड़े पंगे ले लेते हैं?
शाह महमूद साहब के पीछे सिर्फ जो है ना उनकी वजारत है अभी हाँ, तो, अच्छा क्योंकि उनको वजारत मिली हुई है और वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही वो चल रहे हैं, और ठीक है। पॉलिसीज तमाम जो आपको पता है तरीके इंसाफ हो या हुकूमत हो हाँ तो उसके ऊपर वो बेस करते हैं, ठीक है। और मीडिया में बड़े ज्यादा वो इन रहते हैं। किसी हद तक शाह महमूद साहब की बात देखी जाए तो वो ठीक है कि हाँ। जहांगीर तरीन क्योंकि ये पहले पिछली हुकूमतों पे खुद ये तनकीद करते रह गए हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बाहर होने के बावजूद ये क्यों नायल होने के बावजूद ये करते रह गए हैं, मीटिंग्स में आ रहे हैं। ठीक। मगर देखा जाए तो जहांगीर तरीन की जितनी खिदमात हैं इस पार्टी के लिए तो बहुत ही ज्यादा हैं, तो उस हवाले से देखा जाए तो गलत जो है ये हो रहा है और पार्टी को नुकसान हो रहा है। अच्छा, ज्यादा पैसे Main किसके पास है, मैं कुरैशी साहब के पास या तरीन साहब के पास? देखें, तरीन साहब अपने जहाज में बिठा इतने असेंबली मेंबरान को उन्होंने तरीके इंसाफ ज्वाइन करवाई है, ठीक है। और उनके पास कहा जाता है कि एटीएम जो है वो एटीएम मशीन है वो तरीके इंसाफ की, सही तो बात है। ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा जो इनका तनाजा जो हमें नजर आता है एक तो वो, दूसरा मुल्तान में जिस हल्के में शाह महमूद को आजाद उम्मीदवार सलमान नईम ने हराया था, और उसके बाद जहांगीर तरीन ने उनको तहरीके इंसाफ में अपने जहाज में बिठाकर शामिल करवाया था। अच्छा, वेरी तो गुड। इख्तलाफ तो देखें ये यहाँ से इस भी हद शुरू तक होता है। है कि वो किस तरीके से है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ गुलजार साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि कोई मुशीर बनवाया गया उनके किसी रिश्तेदार को, वो सारी बात क्या है? गुलजार साहब तो अपने हलके में जो है ना, जिस तरीके से कहा जा रहा था ना कि जनूबी पंजाब को सीट दी जा रही है, जनूबी पंजाब को सीट मेरी नजर में जो है और अवाम की जो राय है उसमें ये सीट दे के वैसे जाया की गई है। अच्छा, जनूबी पंजाब को कह भी दिया है कि वजीर आला आपका है, हाँ। और वजीर आला हमारा है भी नहीं। अच्छा जुनेद, मैं आपकी गुलजार कह रही थी, मैं गुलजार साहब जो हैं उनके वालिद का भी ज़ाहिर इंतकाल हुआ, और इस दौरान उनके जो वजीर यानी मुशीर इत्तलात हैं, नहीं स्पोक्स पर्सन है वजारत इत्तलात के, गिल साहब, उन्होंने कुछ अपने तौर पे कुछ इंस्पेक्शंस वगैरह कर ली, कोई नोटिफिकेशन आ गया, ये भी एक तनाज़ा सामने आया? बिल्कुल ये तनाज़ा सामने आया है। इसी दौरान जो है ये काफी सारी जो है वो लेटर सामने आए कि इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं। गिल साहब जो है वो बेसिकली उनके स्पोक्स पर्सन जो है वजीर आला के थे, और बड़े जो सोशल मीडिया है चाहे वो कोई भी हो, ट्वीट हो, उनके बड़े बयानात आते रहते हैं, और बड़े वो तनकीदी बयानात भी मुख्तलिफ लोगों पे करते रहते हैं। तो उसी दौरान जब ये इनके इंतकाल हुआ है वालिद साहब का, तो पीछे से लेटर आया कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और उन्होंने इंस्पेक्शन कुछ की भी। फिलहाल तो वजीर आला के नोटिस में जैसे आया उन्होंने इंक्वायरी स्टैंड कर दी और रिपोर्ट जो है वो तलब की है कि भाई इनको इख्तियारात किसने दिए हैं। मगर वो लेटर जिसने अब जारी किया उनको पता ही ना हो कि देखिए वजीर आला हो, और उसको पता ना हो कि मैं उसके ऑफिस में और उसके जो नीचे काम करने वाले अफसरान हैं वो किस तरीके से जो है वो कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक, मैं कहता हूँ इससे बड़ी नाअहली तो कोई नहीं है कि वो वजीर आला को पता नहीं है कि उसके इख्तियारात जो हैं वो तकसीम हो रहे हैं और नीचे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी एक चीज, ये तो वैसा ही वाक़या हो गया जो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं कि वो वजीर आला का जाली ख़त लेके घूमते फिरते रहते हैं ना वो लोग, ये तो बिल्कुल वैसा ही मामला हो गया। अच्छा, बिल्कुल अब आखिरी मिनट रह गया। जुनेद, ये बताइएगा कि जो रहीम यार खान से आगे के ट्रैक का मामला था, ज़ाहिर है वो ख़बरें आप तक भी पहुंची होंगी, उस पर शेख रशीद साहब ने सिर्फ माजरत की है बस। देखें, ट्रेनें लेट हो रही हैं, आवाम का नुकसान हो रहा है, इनके पास वजारत होने के बावजूद मैं कहता हूँ डेवलपमेंट ठीक है कि रेलवे में जरूर हुई है, इनकम बढ़ी है, मगर फिर भी जो देखा जाए तो अगर खाली माजरत किया तो ये इंतहाई जो है वो मैं कुछ इन पे अल्फाज यूज नहीं करना चाहता कि जो है ना सिर्फ माजरत से काम नहीं चलेगा। क्योंकि वजारत का काम होता है कि मुकम्मल तौर पे जस्टिफिकेशन देना, अवाम को जिनके लिए वजारत ली गई है उनको मुतमईन करना, उनको फैसिलिटेट करना। बिल्कुल सही है। अगर उनको ही वो नहीं कर सक रहे तो मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब को दोबारा गौर करना चाहिए और माजरत के अलावा जो है उनको वो निकलना चाहिए और अवाम को जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि क्यों इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि वो अवाम के वोटों से ही बने हैं। बिल्कुल ठीक है। जुनेद, आइंदा जब आपसे बात होगी तो वजारत ख़जाना पंजाब ने एक फ़ैसला ये किया है कि पंजाब का जो बजट हुआ करेगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जिसमें जनूबी पंजाब का भी हिस्सा शामिल होगा।
تو جب آئندہ آپ سے بات کریں گے تو اس بارے میں ضرور بات ہوگی کہ اس فیصلے سے جنوبی پنجاب پر کیا اچھے یا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ کوشش کی ہم نے تھوڑا سا جائزہ اور احاطہ کیا جائے مختلف اسٹیشنز پہ کیا ہو رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔